جو بندہ کسی اپنے پیارے کو، مرحوم کو، کوئی زندگی کا ساتھی چاہ جدا ہو گیا، اس کا تصور کر کے ایک دفعہ اس کو جہاں بھی ہے سوائے ناپاک جگہ پہ جہاں بھی ہے ایک دفعہ دل میں کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اور نیت کر لی کہ یا اللہ میں نے اپنے والد، والدہ، دادا، دادا وغیرہ ان کو دے دیا، بس یہ نیت کر لی۔ فرمایا اس ایک دفعہ کلمہ پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ اللہ پاک فرمایا اس کی قبر میں 4000 نور داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی قبر میں؟ 4000 نور اس کی قبر میں، اور 4000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور 4000 بخشش کے پروانے، اور 4000 درجے بلند ہوں گے۔ کس کے لیے؟ ایک دفعہ کلمہ پڑھیں اور پوری دنیا کے مرحومین کو دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب بولیں اتکار ول دل یار ول، کلمہ پڑھ رہا اور ایک دفعہ کلمہ پڑھا اور ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے اور اس ایک دفعہ کلمے کو ہدیہ پیش کر، اس کی جھولی کتنی بھری جائے گی، اس کا مال کتنا ہوگا، اس کو عزت کتنی ملے گی، اس کو وقار، شان و شوکت کتنی ملے گی، اس کی حاجتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کی ضرورتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کو رزق، عزت، دولت، صحت، وقار، شان و شوکت کتنا ملے گا، کتنا ملے گا۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے نکے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، نکے شاہ صاحب، مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے، میں چھوٹا سا پڑھتا تھا، مجھے گمان ہے میں تیسری یا چوتھی میں پڑھتا تھا، تیسری یا چوتھی۔ نکے شاہ صاحب سے میں نے کچھ غلطی کی ہوگی ظاہر ہے، انہوں نے مجھے بہت مارا، ناک سے خون بہنا شروع ہوا، پھر ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر مجھے ایسے کھڑا کر کے ٹانگیں نیل ڈاؤن کر کے پھر نیچے پیچھے تختی رکھوائی، تختی رکھ کے پیچھے اینٹیں رکھوا دی۔ ناک سے خون بہ رہا ہے میرا، مارا، تھپڑ مارے بہت زیادہ، پھر پیچھے مجھے ٹانگوں میں کھڑا کر کے ٹانگیں پیچھے کر کے ان کے اوپر تختی رکھوائی، تختیاں ہوتی تھی ہمارے پاس، اس کے اوپر اینٹیں رکھوا دی، میں کھڑا ہوا ایسے، تو تیسری چوتھی پڑھتا تھا۔ نکے شاہ صاحب جمعہ جماعت بھی کراتے تھے اور جنازہ بھی پڑھاتے تھے، پیر بھی تھے، جیب میں تعویذ ہوتے تھے، مرید آتے تھے وہیں اسکول میں، پھر ان سے تعویذ ان کو دیتے تھے، پھر مرید جو ہدیہ دیتے تھے جیب میں ڈال لیتے تھے، بڑا سا چولا پہنتے تھے، 2 جیبیں ہوتی تھی، ایک جیب تعویذوں کے لیے ہوتی تھی، ایک پیسوں کے لیے ہوتی تھی، تعویذ تیار ہوتے تھے جیب میں۔ نکے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نیک انسان تھے، ان کے میں ایک قبر کھودنے والے پاس تھا، ان کا نام تھا بشیر کمہار، میں ان کے پاس بیٹھا تھا، بابا جی تھے، میں نے کہا کوئی حال سنا ہے؟ کہنے لگے نکے شاہ صاحب نے کہا کہ قبر کا حال سنا۔ میں نے کہا شاہ جی جب قبر کا پہلا پایا، پہلا قدم قبرستان میں آتا ہے تو قبر جھٹکا لیتی ہے، اور اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو جھٹکا نہیں لیتی، اور اگر بندہ بھاری ہوتا ہے تو قبر جھٹکا لیتی ہے، اور مٹی نکال کے جو ہم نے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہے اس میں لکیریں پڑ جاتی ہیں، اور جھٹکا لینے سے کنکر، مٹی کے ڈھیلے قبر کے اندر گرتے ہیں۔ شاہ صاحب کا ایک دوست تھا، بڑا نیک تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے، تو میں نے کہا شاہ جی آپ لوگ تو میت کو کندھا دے کے آئیں گے، آپ پہلے آ جائیں۔ شاہ صاحب نے اس کا جنازہ پڑھایا اور سائیکل پہ تیز بھگاتے بھگاتے سائیکل آ گئے اور آ کے قبر کے قریب بیٹھ گئے۔ اب چاچا بشیر کہتے ہیں کہ میں بھی قبر کے قریب بیٹھا تھا، قبر کھود کے میرے کہنے لگے تقسیم ہند سے پہلے میں والد کے ساتھ چھوٹا سا تھا تو قبریں کھدواتا تھا، میرا ابا بھی قبریں کھودتا تھا، ہم بھی قبریں کھودتے ہیں، فوت ہو گیا، چاچا بشیر بھی فوت ہو گیا۔ کہا کہ جب میت پہلی قبرستان میں ایسے قدم رکھا، لوگوں نے داخل ہوئی، قبر نے جھٹکا لیا اور قبر پہ ایسے الٹی سیدھی لکیریں مٹی پہ پڑ گئیں اور چھوٹے چھوٹے کنکر قبر کے اندر گرے، تو مجھے شاہ جی کہنے لگے یہ کیا؟ کہنے لگے آپ کے سامنے ہیں، دیکھ لیں۔ کہا کہ میرا دوست تو بہت نیک تھا،
किस चीज की पकड़ में है कि कब्र ने झटका लिया है। एक वाकया, ये मैं बात बयान कर दूं। एक वाकया ये है कि मैं अम्मा अब्बा के मज़ारात पे गया वालिदैन के, तो मेरे दोनों बेटे साथ थे, साथ कब्र खोदी जा रही थी। मैंने कहा उनको दिखाऊं कब्र कैसे खोदी जाती है। कब्र खोद रहा था एक बंदा, तो ईंटें जो है वो घड़ रहा था कब्र को बनाने के लिए, तो उनके साथ खड़े हो गए, पहचान लिया उन्होंने। मैंने उनसे हाल हवाल लिया, कोई हाल हवाल सुनाए कब्र का। उन्होंने कहा फलां चौक में जो वो मूला होता था, उसको मूला नाम पता था, बदमाश था। हाँ, मैंने कहा मैं जानता हूं, उसके अंदर तो सारे ऐप थे, A to Z, अलिफ से ये तक। हाँ वही। कहा मैंने कई साल बाद किसी की कब्र खोदी तो मूले की कब्र खुल गई, मूला बिल्कुल ठीक ठाक पड़ा हुआ था। किसका फैसला कर सकते हैं, किसके बारे में क्या कह सकते हैं, उसकी शान करीमी का निजाम क्या है। जो इस उम्मत से मोहब्बत करेगा, जो इस उम्मत की मग़फ़िरत चाहेगा, जो इस उम्मत के लिए दिन रात अल्लाह से मांगेगा, मेरे अल्लाह कहते हैं बंदों को तो मैं पसंद करता हूं, इबादी मेरे बंदो, और तू भी बंदों को मुझसे मोहब्बत करता है और पसंद करता है। और अल्लाह को अपने बंदे कैसे महबूब है, क़यामत के दिन एक बंदा जाएगा, उसके पास होगी भी एक ही नेकी, कहेगा मेरे एक नेकी से क्या होगा। और एक बंदा जाएगा कि उसके पास होगी भी एक नेकी कम, अल्लाह पाक फरमाएंगे कहीं से नेकी ले। अब इधर उधर फिरेगा, कौन देगा। आखिर जिसके पास एक नेकी होगी उसके पास जाएगा और वो कहेगा तू एक नेकी ले ले, तेरा काम बन जाए, मेरा तो पता नहीं बने ना बने, चलो तेरा काम बन जाए, तेरा गुजारा होगा। अब एक नेकी लिए खुशी खुशी अल्लाह के हुजूर आएगा, अल्लाह बावजूद जानने के फरमाएंगे उसको भी लिया जिसने तुझे एक नेकी दी है, उसे भी लिया। अब उसे लेके अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह पाक दोनों को सामने खड़ा करेंगे और पूछेंगे ये एक नेकी तूने दी थी? हाँ या अल्लाह मैंने दी थी। और अल्लाह पाक फिर उस बंदे से फरमाएंगे जिसने एक नेकी दी, क्या फरमाएंगे? फरमाएंगे मुझसे बड़ा करीम बनता है, मुझसे बड़ा करीम बनता है। जा, तूने मेरे बंदे पे तरस खाया, तूने मेरे बंदे पे रहम खाया, तूने मेरे बंदे पे रहम, जा मैंने दोनों पे रहम किया, दोनों को माफ कर दिया। अल्लाह को अपने बंदे इतने पसंद हैं। और कितने पसंद हैं? क़यामत के दिन एक बंदा जाएगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे तेरा कोई नेकी नहीं, नाम अमाल तेरा सारा खाली है, जा जहन्नम में जा। वो भागा जाएगा जहन्नम में, हालांकि जहन्नम में तो घसीटा जाएगा, खुज़ूहु सुम्मल जहीम नस्ल, वो भागेगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे बुलाओ इसको। अब गौर से सुनिएगा, तवज्जो से गौर से सुनिए। अल्लाह पाक फरमाएंगे बुलाओ इसको, ये क्यों भागा जा रहा, तो क्यों जहन्नम की तरफ क्यों भागा जा रहा? अल्लाह आपने जो फरमा दिया। और मैंने कहा कि सारी जिंदगी मैंने मौला तेरी एक भी नहीं मानी, चलो आज यही मान ली। मैंने सारी जिंदगी तेरी एक बात की नहीं मानी, तो मैं आज तेरी एक ही मान लूं। तेरे हुक्म है कि तेरा तूने फरमाया कि तू जहन्नम में चला जा, यही मान लूं। अल्लाह पाक फरमाएगा अच्छा इधर आ जा, तेरे सारे अगले पिछले माफ। जो मेरा रब अपने बंदों से इतना प्यार करे और जो उस बंदों से प्यार करे या सिर्फ उनके लिए दुआएं करे, उसकी झोली कितनी भरी जाएगी, उसका माल कितना होगा, उसको इज्जत कितनी मिलेगी, उसको वकार शान और शौकत कितनी मिलेगी, उसकी हाजतें कितनी पूरी होंगी, उसकी जरूरतें कितनी पूरी होंगी, उसको रिस्क इज्जत दौलत सेहत वकार शान और शौकत कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। अब आप सोचें, आप खुद ही सोचें, खुद ही सोचें कि उसको कितना मिलेगा। आज एक तोहफा और देना चाहूंगा जिसपे आप बहुत खुश होंगे और आपको बहुत नफा मिलेगा। एक शख्स कहने लगे कि मैं मैदान अराफात में था और मैदान अराफात में मैंने देखा कुछ लोग हैं जो एक दरवेश के इर्द गिर्द बैठे उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं।
मैं भी आमीन कहने लगा। बहुत देर तक दुआ होती रही, मैं भी तो आमीन कहता रहा। जब दुआ खत्म हुई, मैंने उनसे पूछा ये हस्ती कौन है? कहा ये नवासे रसूल हजरत इमाम हसन है। हाँ, मैं उनसे लिपट गया, मैं रोया कि मैंने सारी जिंदगी एक एक दौने के एक एक औकिया और एक एक पैसा पैसा जमा करके हज का सामान बनाया, हज के असबाब बनाए। कोई अता फरमा दे, आज कोई अता फरमा दे कि मेरे मशकी से भर जाए, मेरे खच्चर भर जाए, मेरी ऊँटनियां भर जाए, बस मशकी से भर जाए, मेरे खच्चर भर जाए, मेरी ऊँटनियां भर जाए। मैंने उनके सामने अर्ज किया तो शेख ने फरमाया अच्छा देख, मेरा वो खैमा है, थोड़ी ही देर के बाद आना, जब मजमा हट जाएगा मैं तुझे अता करूंगा। मैंने हजरत के खैमे को देख लिया, हट के बैठ गया, इस इंतजार में वो थोड़ी देर कब गुजरेगी, हत्ता के आहिस्ता आहिस्ता लोग हटना शुरू हुए। हजरत अपने खैमे में तशरीफ ले गए। जोहर की नमाज हो चुकी थी, नमाज पढ़ी थी, हजरत अंदर तशरीफ ले गए। मैं इंतजार में बैठा रहा। थोड़ी देर हुई, हजरत साथ वाले खैमे में तशरीफ लाए। एक खादिम आया कि शहजादा अहले बैत आपको बुला रहे हैं। तो मैंने समझ गया इस खैमे में मस्तूरात हैं और इस खैमे में आप अकेले हैं। मैं गया, बहुत खुश हुए, उससे पूछा कहाँ से आए? कहा मैं दरियाए दजला के किनारे फलां बस्ती में रहता हूँ, दूर से आया हूँ, पहली दफा हज पे आया हूँ। आपकी जियारत का शौक था, बहुत जज्बा था, सारी उम्र दुआएं मांगता रहा आपकी जियारत, कि किसी तरह आपकी जियारत हो जाए। आपने फरमाया क्या चाहता है? फरमाया मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी सारी जरूरतें पूरी कर दे, मेरे मशकी से भर जाएं, मेरे खच्चर भर जाएं, मेरी ऊँटनियां भर जाएं, मेरा घर भर जाए, मुझे कोई कमी ना हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे 19 नस्लों का रिस्क मांगना चाहता हूँ। तो कहा मुझसे इमाम हसन ने फरमाया 19 नस्लें तुझे क्यों याद आई? कहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा कि जो बिस्मिल्लाह है उसकी निस्बत 19 के साथ है, बिस्मिल्लाह, और जहाँ बिस्मिल्लाह होती है वहाँ बरकत होती है। मुझे 19 नस्लों का रिस्क चाहिए, 19 नस्लों का माल चाहिए, 19 नस्लों के लिए मुझे नेमतें चाहिए। और फिर मैं और क्या मांगता हूँ? मैं ये मांगता हूँ अगर मैं किसी गार में बैठूं तो वहां रिस्क मिले, किसी दरख्त के नीचे बैठूं तो रोजी मिले, किसी पहाड़ को हाथ लगाऊं सोने का बन जाए, किसी मिट्टी को हाथ लगाऊं तो हीरा बन जाए। मैं ये मांगता हूं मैं जिसके लिए दुआ कर दूं उसका काम हो जाए। कहा मेरे जज्बे को पढ़ते हुए शेख ने फरमाया और क्या मांगता है? सखी तो और देना चाहता है, मोहम्मद आले मोहम्मद से बढ़ के कौन सखी होगा? कहा कि आपने फरमाया और क्या मांगता है? कहा मैं ये मांगता हूं कि मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं, जिसके लिए दुआ मांगू दुआ पूरी हो, अपने लिए मांगू पूरी हो। मैं और क्या मांगता है? कहा मैं ये मांगता हूँ बादशाह के पास जाऊं तो बादशाह मसनद और तख्त छोड़ के मुझे तख्त पे बिठाए। तो शेख हंस पड़े, फरमाया तू खुद बादशाह बनना चाहता है? कहा बना देंगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। तो आपने फरमाया तो मैंने तो खुद बादशाह छोड़ी है। इमाम हसन ने फरमाया मैंने तो खुद बादशाह छोड़ी है। और बहुत बड़ा इसार था उनका, बहुत बड़ी अजमत थी कि उन्होंने तख्त छोड़ दिया मुसलमानों की खून रेजी की वजह से। कहा नहीं मैं तख्त को छोड़ देता हूँ, क्यों? हमारे घर में नबूवत आई है, बादशाहत नहीं आई। आपने फरमाया अच्छा ऐसा है, जब असर ढल जाए फिर मेरे खैमे के साथ आके बैठ जाना। असर ढल जाए क्यों? फरमाया जब असर ढल जाती है तो उस वक्त एक खास घड़ी होती है, उस घड़ी में जो अता किया जाए वो कबूल होता है, जो मांगा जाए वो मिल जाता है, जो असर अगर हो जाए। तो कहा मैं असर का इंतजार करने लगा। तो असर के बाद मुझे बुलाया, और मैं डूबती असर थी। हजरत इमाम हसन ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के फरमाया ऐसा कर अपने जैसे दुखियारे 11 और ले आ और जल्दी ले आ। कहा कि मेरे काफिले में बहुत से लोग थे, हमारा सैकड़ों का काफिला था, आया था, बहुत से लोग थे, उन सबको मैं ले गया 11 अफराद को। उन सबको कहा कि तुम भी कहना कि हमें जरूरत है, और उनको जरूरत भी थी। ये सारे 11 हजरात सामने बिठाए और मैं 12वां हो गया। और सब 11 से कहे यहाँ बैठे हो ना तुम अरफात के मैदान में, अरफात के मैदान की ढेरियां बना लो, मिट्टी के पहाड़ बना लो, ढेरियां बना लो। हमने सब ने बना लिए और मैं इसमें हाथ रखो। और हाथ रखने के बाद कहा फरमाया जो मैं विर्द पढ़ता जाऊं तुम पढ़ते जाना, जो पढ़ता जाऊं पढ़ते जाना। और उसके बाद पढ़वाया और कहा बहुत देर तक पढ़वाते रहे पढ़वाते रहे पढ़वाते रहे। और उसके बाद फरमाया इन हाथों को झाड़ो और जाओ, जो चीज आज के बाद मांगोगे वो मिलेगा। और कहा कि अब अगर इसी जो मिट्टी की ढेरी है इसी के बारे में भी मांगोगे तो अल्लाह इस रेत को सोने की रेत बना देगा। कहा कि मुझे तो यकीन था, हम में से एक बंदे ने वही लफ्ज पढ़ा और पढ़ने के बाद देखा तो उसकी मिट्टी की ढेरी सोने की ढेरी, सोने की रेत बन गई थी। लेकिन कहा मैंने नहीं किया। तो हजरत ने मेरे अमल पे खुशी का इजहार फरमाया, हजरत इमाम हसन ने, और एक लफ्ज फरमाया, फरमाया जा इसका हाथ सोने का है, तेरा दिल और जुबान है, तो जिसके लिए सोना कहेगा उसकी तकदीरें बदल जाएंगी। ये एक रिवायत है, लंबी रिवायत को मैंने मुख्तसर आपकी खिदमत में खुलासा अर्ज किया। नहीं, सदियों पुराने उलमा, बुजुर्ग, औलिया, सालिहीन ने इस अमल को फिर किया और अगलों को बताया, फिर उन्होंने औरों को बताया, फिर औरों ने औरों को बताया, फिर जो इस अमल की तासीर खुली, इस अमल की तासीर का करीब करीब एक वाक्य सुनाता हूँ। वाली अफगानिस्तान थे अमीर हबीबुल्लाह खान, अमानुल्लाह थे, हबीबुल्लाह थे, अफगानिस्तान के बादशाह थे। और जब भी किसी सफर में तशरीफ ले जाते थे,
एक बंदे को साथ रखते थे। वो बंदा इस दुआ का आमिल था, जो अभी दुआ हम पढ़ने लगे हैं इसका आमिल था। और बंदा क्या करता था, वो 3 घोड़ों और काफिलों के साथ आगे चलता था। आगे चलने से मुराद ये होता था, अगर वो चल रहा है तो आगे रास्ता बेखतर भी है, मौसम भी ठीक है, हालात भी बेहतर हैं। हत्ता कि अगर दुश्मनों के काफिले में भी वो शख्स जाके बैठ जाता था तो बड़े बड़े फातिहीन जब हमला करने आते थे, उन फातिहीन की फतेह भी रुक जाती थी। कहा कि जब तक वो बंदा रहा बादशाह अफगानिस्तान के साथ, कोई फातेह, कोई दुश्मन, कोई हासिद और मुख्तलिफ जगहों से शोरशें, बगावतें करने वाले सब 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 दोस्त बन जाते थे, और बादशाह के हर मकसद हासिल होता था, हर मंजिल मिलती थी, हर मुश्किल हल होती थी, और बादशाह इज्जतों के ताज पहनता था। ये वो इस दुआ का आमिल था, वो इस दुआ का आमिल था। खुरासान के एक बुजुर्ग थे जो उस बुजुर्ग के साथ रहे, उन्होंने उनको ये दुआ दी, उन्होंने ये तफसीरी वाकया लिखा वाली अफगानिस्तान का, बादशाह अफगानिस्तान का लिखा कि उनके इस वाकये की बरकत से मुझे ये दुआ मिली है। और फिर फरमाया, मैं ये दुआ पत्थर हो, लकड़ी हो, गार हो, समंदर हो, दरिया हो, कायनात की कोई नामुमकिन हो, मैंने ये मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से मिली इस दुआ को जब भी पढ़ा है, मैं हैरत अंगेज तौर पे हैरान हुआ हूं और मेरी जिंदगी में हैरत के दरवाजे खुल गए हैं। मैं चाहता हूं इस आज हम पढ़ लें और ये मोती अपने अंदर ले लें और ये मोती अपने अंदर समो लें और इस मोती का फैज, इसकी बरकत और इसकी खैर पाले। इसी मोती की निस्बत से दुआ भी करें। आप चाहते हैं ये मोती मिल जाए और आप भी वो बंदे बन जाए, वो इंसान की हैसियत आपका मकाम हो कि जो बादशाह अफगानिस्तान उसको बहुत इज्जत देता था, उनका वकार था और उनके साथ पास ये अमल था, उनके पास ये दुआ थी। वो कहते थे पत्थर बन जाए, गार बन जाए, पानी हो, समंदर हो, दरिया हो, नहर हो, कहीं कोई चीज हो, मुझे कोई खतरा नहीं है क्योंकि मेरे पास ये है। और उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि मैं इससे पहले एक और बादशाह की फौज में होता था। बादशाह की नजरों में कैसे आया, जरा ये वाकया भी सुन लेना, नहीं समझ आई। बादशाह की नजरों में कैसे आया, ये वाकया जरा गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, जागते हुए सुनना। इस पहले एक और बादशाह के पास था, बगावत हो गई, ये बादशाह को लेके निकला खुफिया रास्ते में। वो जिस बादशाह ने बगावत की थी वो इस बादशाह को कत्ल करना चाहता था, कत्ल करना चाहता था, खुरासान के बादशाह को कत्ल करना चाहता था। ये बादशाह को लेके निकला, पर मैं हम एक बद्दू देहाती के खेमे में जाके छुपे, हमें घोड़ों की आहट महसूस हुई। तो वो देहाती बद्दू कहने लगा, ये बादशाह के घोड़े हैं और बादशाह के ही गुलाम हैं, फौजी हैं, लगता है किसी मफरूर को तलाश कर रहे हैं। कहा कि मैंने उसी वक्त ये दुआ पढ़ के खेमे पे दम की। वो लोग खेमे में आए और उस बद्दू से आके पूछने लगे, यहाँ इस शक्ल के 2 बंदे तो नहीं आए? तो कहा, बद्दू की जुबान बंद हो गई तो बद्दू यूं यूं देखने लगा, कहा कुछ नहीं, उन्हें कुछ नजर नहीं आया, आगे निकल गए। कहा जब वो आगे निकले तो हमने कहा कि कहीं बद्दू हमारी मुखबरी ना कर दे। हम उस खेमे से निकले, निकलते निकलते एक जगह देखा, पानी का चश्मा है, पानी के चश्मे के साथ कुछ बड़े बड़े दरख्तों का झुंड है। हमने पानी पिया, था कुछ नहीं, दरख्तों के झुंड में। थोड़ी ही देर हुई कि हमारे पास वो फिर आए और कहने लगे, पांव तो उन्हीं के लगते हैं यहाँ आए हैं। पहले दौर में पांव पहचानने वाले बड़े मशाक होते थे। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोजी थे, खोज लगाते लगाते कहां पहुंचे थे? गारे सौर में पहुंचे थे। सौर में वो पांव उठा के तो गए थे, तो कहा ये पांव है, ये पांव है, और पांव लगता है कि किसी के वही हैं। तो वो पांव कहा, चलते चलते हमें आहट महसूस हुई, उन झाड़ियों की तरफ हमारे पांव थे। तो कहा मैंने ये दुआ पढ़ी और इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दी और दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू कर दी। कहा हमारे करीब थे, उनकी सांसों की आवाजें हमें, उनकी शक्लें सामने थी, झाड़ियों को हटा रहे थे, हम उनको नजर नहीं आ रहे थे, जबकि मैं उन्हें देख रहा था। कहा नाकाम होके चले गए। फिर एक और जगह हम गए तो एक बादशाह के यहाँ जाके हमने पनाह ली। तो बादशाह के यहाँ पहुंचे पूरा लश्कर लेकर कि हमारे कातिल मफरूर हैं, दुश्मन ने हमारे हवाले किए। हत्ता के बादशाह को बेबस और मजबूर कर दिया और बादशाह ने कहा कि इनको पाबा जंजीर जोलान जंजीरें डाल के इनके हवाले कर दो। कहा कि हमें जंजीरें डाली, हवाले किया, लेकिन जहां मैंने ये पढ़ा जंजीरें टूट गई और घोड़े बैठ गए। हम घोड़ों से उतर के कहीं चले गए, वो हमें ढूंढते रहे, हमें नजर ना आए। कहा पूरे सफर में जब भूख लगती थी ये पढ़ते थे, आज से 3 दस्तरखान उतरते थे। पूरे सफर में भूख लगती थी पढ़ते थे, या चश्मा मिलता था या अर्शों से मशकीजा आता था। पूरे सफर में पढ़ते थे, सवारियां मिलती थी, हिफाजत मिलता था, तहफ्फुज मिलता था। हत्ता कि इसके पढ़ने से वापस बादशाह को इक्तदार और हुकूमत मिली। जब वो बादशाह मर गया
تو اس کے بیٹے نے اس نے کہا اس میرے محسن کا خیال کرنا، اور بیٹے نے پھر پیر و مرشد سے بھی زیادہ مجھ کو عزت عطا کی۔ تیار ہیں پھر اس دعا کو لینے کے لیے، اس کی برکتیں لینے کے لیے تیار ہیں اللہ والو، یا بے قرار ہیں؟ مجھے تو بے قرار چاہیے، تیار نہیں چاہیے۔ اب اس دعا کو پہلے میں پڑھوں گا، توجہ اور دھیان سے اس کو جذب کریں، اس کو سنیں، اس پہ توجہ دیں، اس پہ دھیان دیں، اس کو یاد کریں، پھر اس کو ہم مناجات، درد اور دعا اور زاریوں کی شکل میں اس کی برکتیں مانگیں گے۔ کیا خیال ہے ایک بندے نے پڑھا تاثیر ہے، جس کو مجمع بیٹھ کے پڑھے، جس کو مجمع بیٹھ کے پڑھے، جس کو مسافر بیٹھ کے، زاریاں کرنے والے، رونے والے، بلکنے والے، سسکنے والے، التجائیں کرنے والے، دعا کرنے والے، تو اس کی تاثیر اور طاقت کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ بولے یا دائم ہو یا حیو، یا فرد ہو یا وطر ہو، یا قدیم ہو یا احد ہو، یا صمد ہو، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ دعا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، یاد نہ بھی کر سکو، اس مجمع میں جو دعا پڑھ لو گے اور آمین کہہ لو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ والو، یہ مجمع ایسے ہے جیسے کوئی عامل بیٹھا ہے، سارے سامنے بیٹھے ہیں، عامل نے عمل کرایا، سب کو عامل بنا دیا، سب کو پگیں پہنائیں، ابائیں پہنائیں، کہا جاؤ مخلوق خدا کو جا کے دم کرو، دعا کرو، جاؤ کامیاب ہو۔ یہ صورتحال ایسی ہے، آج تو ایسی صورتحال ہے۔ اس لیے اگر یہ دعا یاد نہیں ہوتی، اس کو درد سے، اس کو غم سے، اس کو سوز اور ساز سے ڈوب کے پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں، اور اپنی مناجات، اپنی پریشانیاں، اپنی ناکامیاں، اپنی ناممکن، پھر وہی الفاظ ہیں، ناممکن میرے لیے، آپ کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کون سی ناممکن ہے؟ یا دائم ہو یا حیو، یا فرد ہو یا وطر ہو، یا قدیم ہو یا احد ہو، یا صمد ہو، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا دائم ہو یا حیو، یا فرد ہو یا وطر ہو، یا قدیم ہو یا احد ہو، یا صمد ہو، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ پھر توجہ ڈوب سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں۔ اب ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں، اور پہلے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا دائم ہو یا حیو، یا دائم ہو یا حیو، یا دائم ہو یا حیو، پڑھیں، یا دائم ہو یا حیو، پڑھیں، پڑھیں، خود پڑھیں، لجائے سے پڑھیں۔ آج آپ نے پڑھنا ہے، میں نے آمین کہنا ہے، یا آمین، 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 یا دائم ہو یا حیو، آمین، یا دائم ہو یا حیو، آمین، آمین، آمین۔ یا اللہ، حضرت امام حسن آل رسول شہداء کربلا کے واسطے، یا دائم ہو یا حیو، یا فرد ہو یا وطر ہو، 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 یا فرد ہو یا وطر ہو۔